परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है God is विश्वास। going to make you an example of faith. मैंने कहा परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है I said God is gonna विश्वास make you an का। जब example लोग of आपको faith. देखेंगे कहेंगे मैं आपकी तरह विश्वास चाहता हूँ, When people will see you, they will say, I want faith मैं like आपकी you. तरह छुटकारा चाहता हूँ। I want deliverance like you. मैं ये घोषणा करता हूँ परमेश्वर आपको उस जगह में रखेगा जहाँ कोई भी आपके ऊपर दया नहीं दिखा पाएगा। I pray that God will place you in a position where nobody will ever be able to have pity on you. You will not be pitiable, you will be enviable. आप दयनीय नहीं, आप जलन के योग्य ठहरेंगे. Praise God. So मैंने आपको कहा था ये प्रशिक्षण स्थान है, तो यहाँ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। I told you this is a training center, so with theory you need practical as well. शैतान तब तक आपको नहीं बांध सकता The devil cannot bind you until जब तक आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है। till the time your mouth is in the hands of the Holy Spirit, the devil cannot bind you. बाइबल बताती है पौलुस और सिलास बंधन में थे, The Bible tells us Paul and Silas were in the पर bondage. आधी रात को उन्होंने मुंह खोला, परमेश्वर को महिमा देने लगे। But in the middle of the night, they opened their mouth and began to क्या हुआ? glorify परमेश्वर God. की सामर्थ प्रकट हुई The power of God came और उनकी सांकलें खुल गई। and their chains were opened. ये प्रोफेटिक पिक्चर है एक बाइबल में This is a prophetic picture in the Bible. कि जब आपको शैतान ने किसी एरिया में बांधा हुआ है That when the devil has bound you in a place और आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, and you're not complaining, आप क्या कर रहे हैं? आप उस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। you're glorifying God at that time. और मैं आपको एक बात बताऊं, जब उत्तर आ जाए तब तो हर कोई महिमा कर सकता है परमेश्वर, When the answer comes, everyone can glorify God. उसमें कोई बड़ी बात नहीं। There is nothing big in that. एक व्यक्ति जिसके पास कोई विश्वास नहीं है बाहर, वो भी कर सकता A man who has no faith outside can है, also मगर do that. विश्वास के लोग But the people of faith, पहले महिमा करते हैं। they glorify first. परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला The Lord told the Israelites, तब जय जयकार करो जब यरीहो की वॉल खड़ी है, जब वो दीवार खड़ी है। glorify me when the walls of Jericho are still standing. ये सीक्रेट है। This is the secret. किसी को कैंसर है, If someone has cancer डॉक्टर ने कहा नहीं जिएगा, and doctor said you won't live, उसने कहा प्रभु said Lord, मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट जो मेरे शरीर कह रहा है इस समय, I तो set मुझे aside, दर्द है, जो मुझे लक्षण है, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ I set aside the doctor's reports, the symptoms, what my body is saying, I keep it all aside. और मैं इस समय, And at this time, इस दुख की घड़ी में, in this moment इस of समय pain, जब मैं सफर कर रहा हूँ, in this moment of suffering, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ I lift up my hands और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, and I thank you, Father. क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित है। Father, because your word is alive. जो कुछ आपके साथ इस समय हो रहा है वो एक तथ्य है। Whatever is happening with you at this moment is a fact. तथ्य वो है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से परखा जा सकता है, Fact is something you can test with your 5 senses. मगर जो उसका वचन कहता है वो But सत्य है। what his word says is the truth. यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है John 17:17 says the word of God is the truth और वो कभी नहीं बदलता। and he does not change. आमीन। सो कई बार आपको ये नहीं देखना मेरा छुटकारा कहाँ से आएगा, So you don't have to look for your deliverance. Where आपका will it come? छुटकारा कहाँ से आएगा, Where will your deliverance come from? कहाँ से आएगा, Where is your deliverance coming from? कहाँ से आएगा। Where will it come from? मगर अब आपको एक और बात होता, But now I'll tell you one more thing. आपका मुंह वही बोलेगा Your mouth will जो only आपके speak हृदय में भरा हुआ है, what is filled in your heart. क्योंकि अगर वचन नहीं है हृदय में Because if there is no word और filled विपरीत परिस्थिति आएगी and an adverse situation तो comes, जो मुंह से निकलता है then what comes out of the वही mouth आपके हृदय में था उस समय। is what was in your heart at that moment. अगर आप जानना चाहते हो आपके हृदय में क्या है, If you want to know what is in your heart, तो परखो कि जब विपरीत स्थिति आती है आपके साथ आपके मुंह से क्या निकलता है। अगर शिकायत और कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट निकलता है तो वही आपके हृदय में भरा हुआ था। then discern what comes out of your mouth when an adverse situation comes. If it's complaining and grumbling, then that's what was filled in your heart. अगर परमेश्वर का वचन निकलता है तो क्योंकि वचन आपके हृदय में। If the word comes out of your mouth, is because the word was in इसीलिए your मैं heart. कहता हूँ जो आप जानते हैं जो हमारे जो देश में जो सेना है और जो जिस भी देश में जो सेना है वो तब नहीं ट्रेनिंग करते जब लड़ाई हो जाती है। You know, the army of a country doesn't practice, doesn't train when there is war. अब पता चला मिसाइल गिरी है, वो कह रहा है मुझे बंदूक चलाना सिखाओ। And a missile is coming and they're saying, tell me how to shoot. वो ट्रेनिंग तब करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग तब करते हैं जब सब अच्छा है।
They do hard training when everything is perfect. कई लोग सोचते हैं घोषणाएं केवल तब करनी है जब मैं बीमार होऊंगा, Some people think I have to declare when I get sick, जब मेरा जीवन में विपरीत परिस्थिति है, when adverse situations come into my life. तब मैं घोषणा करूंगा. Then I will make अरे declarations. हम घोषणाओं से जीवित रहते हैं. We live by declarations. बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. The Bible says the righteous shall live by faith. यानी जब आपका जीवन सब अच्छा चल रहा So है, when everything is good in your life, कोई परेशानी नहीं है, there is no problem. तब भी वैसे ही घोषणा करो जैसे कि तब कोई कर रहा है जो क्राइसिस में है. Even at that moment you make declarations as if somebody is in a crisis. आमीन. क्योंकि जो कन्फेशन है या घोषणा करना है वो एक एरोप्लेन की तरह है. Because confession is like an airplane. जब तक इंजन ऑन है, Till the time the engine is on, जब तक थ्रॉटल आगे है, जब तक वो क्या बोलेंगे प्रोपेल हो रहा है, till the time the throttle is full and it's propelling, जब तक वो चल रहा है तब तक वो उड़ रहा है. till the time the engine is moving, the plane ये is नहीं moving. कर सकता प्लेन की 50,000 फीट में जाके बोले अरे अब मुझे इस इंजन की थोड़ी जरूरत है, It's not possible that at a certain height, देखो मैं कितना ऊपर उड़ रहा हूँ, I'm flying so high, तो मैं इंजन ऑफ कर देता हूँ. so I'll switch off the engine now. अगर वो इंजन ऑफ करेगा If they switch off the तो engine, प्लेन नीचे जाने लग the जाएगा. plane will start to come down. ऐसे ही कितने मसीह हैं, This is how many believers. वो क्या करते हैं What they जब do सब चीज ठीक हो गया, when everything is अब good, बीमारी थी, बीमारी चली गई, उन्होंने There was घोषणा करी, sickness. अब वो कहते हैं अब कोई दिक्कत हो नहीं, there was sickness and the sickness अब हम left, पॉपकॉर्न खाएंगे और अब हम नेटफ्लिक्स देखेंगे. and now they'll watch Netflix and eat popcorn, और विश्वास, and their faith will start to. क्योंकि विश्वास सुनते रहने से आता है. ध्यान से सुनो 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 सुनो. विश्वास सुनते रहने से आता है और बोलते रहने से कार्य करता है. Because faith comes when you keep on hearing, and faith works when you keep on speaking. सो हमें ये दो चीजें अपने जीवन में लगातार रखनी है. So we need these two things continuously in our life. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं. I'm not trying to जो scare you. विकेट लोग हैं, जो बुरे दुष्ट लोग हैं, The wicked people, वो और स्ट्रेनियस वायरस बनाएंगे आगे they will make even more deadlier viruses in the future. देन कोरोना. Then आप उनको नहीं रोक सकते. you cannot stop them. क्या आप धरने पे बैठ जाओगे, क्या होगा? What will you जो do? Just try. विकेट है वो विकेटनेस करेगा, The wicked will do all the more wickedness. मगर आप विश्वास, बाइबल कहती है एक शील्ड है. But Bible says faith is a shield. विश्वास क्या है? एक शील्ड है, Faith एक is ढाल a है. shield. आप अपनी ढाल इतनी मजबूत कर सकते हो कि दुनिया में कुछ भी हो वो आपको और आपके बच्चों को और आपके परिवार को नहीं छुएगा. You can make your shield so strong that no matter what happens in the world, it will not touch you, your family, your children. आमेन. सो ये समय है अपने विश्वास को मजबूत करने So का. this is the time to make your faith strong. ऑप्शन नहीं है You अब. don't have आप an उस option. आप समझ, यीशु मसीह उसका वचन कहता है हमें समझ होनी चाहिए हम कौन से समयों में जी रहे हैं. Jesus said we should discern what times we live in. हम उस समय में जी रहे हैं जब जो शैतान के लोग हैं और जो परमेश्वर के लोग हैं क्लियर हो गए. अब कुछ नहीं छुपा. We live in a time where the people of the devil and the people of God are clean. ये जितने clear. पिक्चरों के मूवी स्टार हैं हॉलीवुड में वो ओपनली, अब पहले तो था छुप के करते थे, अब तो ओपनली बोल रहे हैं हम शैतान के हैं. All the actors, Hollywood stars, they're openly now declaring they belong to the devil. अब सारे जो उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वो कॉन्सर्ट नहीं है, वो रिचुअल सेरेमनी है. स्पेल बोल रहे हैं लोगों के ऊपर, मंत्र तंत्र बोल रहे हैं. करोड़ों लोग जो वहां जा रहे हैं उनको पता, वो सोच रहे हैं हमें कॉन्सर्ट सुनने जा रहे हैं. Now people that are going to their concerts, they're doing rituals there, they're casting spells in the concerts. इग्नोरेंट नहीं रह सकते अब आप. We cannot stay ignorant बच्चे नहीं anymore. रह सकते You अब. cannot say children anymore. रेवलेशन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो धर्मी हैं वो और धार्मिकता की तरफ भागेंगे और जो दुष्ट हैं वो और दुष्टता की तरफ भागेंगे. The book of Revelation says that the righteous will run towards righteousness and the wicked will run towards all the more wickedness. आमीन. मगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कई मसीह नहीं समझते इस बात को. इट्स ओके. Many believers don't understand this. शैतान कई लोगों को बिलियनर बना रहे हैं, उनके हाथ में वेल्थ दे रहा है. परमेश्वर भी वो करेगा. The devil is giving wealth to many people. वो समय आता है but God जब is also पृथ्वी doing में it. दो टाइप के सबसे वेल्दी लोग होंगे. The time is coming where two kinds of wealthy people will be on the शैतान earth. के लोग The people of the devil और परमेश्वर के लोग. and the people of God. बीच का कोई रास्ता नहीं. Nothing in the middle. Amen. So don't be ignorant. जो गाने आप सुन रहे हो, The songs you hear. आप जानते हैं
These artists are now doing, before they release a CD, they do rituals over it. ये आर्टिस्ट जो हैं एक गाना बना रिलीज करने से पहले उस पर रिचुअल्स करते हैं. Why is the young generation all depressed? क्यों आज depressed हैं सारे? Why? They are listening to these songs which have been, demonic words have been spoken over, and these CDs have been given, और ये शैतान को चढ़ाई गई हैं इससे पहले कि लोगों के ऊपर रिलीज करी जाए. इन पर they've been casted spells on and they've been offered to the devil before they were released. Amen. अभी हम लोग यूरोप में थे और वहाँ पे जब आप कार में जाते हैं तो बच्चे को कार सीट में ही होना है. इंडिया में वो नहीं है. अब जूडा को आदत नहीं है तो वो रोता था. We were in Europe, so the kids have to be in the car seat in the car. और कार सीट में उसको लग रहा है मुझे ये क्यों है मेरे लिए. And he's thinking, why is this for me? और उसी समय मेरे को एक ध्यान आया. And I had a thought. जो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है हमारे लिए, The instructions that God has for us, वो हमें बचाने के लिए, they are for protecting us. वो कार सीट उसके लिए है, उसकी सेफ्टी के लिए. The car seat is for his safety. मगर उसको क्या लग रहा है, अरे यार ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल But है. what is he thinking? This is so uncomfortable. अच्छा आप क्या कह रहे हो? What are you saying? अब कह रहे हो अब हम कुछ ना सुने? That we should not listen to anything. आप डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ. You decide. I will not tell you anything. मगर मैं कहूंगा कि अगर बुद्धिमान हो But I'll say, if you are wise, तो ध्यान दो कि क्या अपने कानों के अंदर डालते हो और क्या अपनी आंखों से देखते हो, क्योंकि वो चीज आपके हृदय में जाता है. जो आपके हृदय में जाता है वो वचन बनता है, और वचनों के द्वारा या तो आप छुटकारा पाओगे या तो आप फंदे में पड़ोगे. आप डिसाइड करो. then hear carefully what you watch and what you hear, because what you watch and hear goes into your heart, and you decide how you want to do it. Amen. हम उस समय में आ चुके हैं. We've come to the time. It has been very open. अब सब साफ है. जो कोई स्टेज से जीसस बोलता है एथलीट, उसको बैन कर दिया जाता है. If any athlete says Jesus from the stage, they are आपने banned. देखा अभी ओलंपिक में क्या हुआ? उन्होंने मॉक किया जो लास्ट सपर की पेंटिंग है यीशु मसीह की डिसाइपल्स के साथ. In the Olympics, they mocked the Last Supper painting of Jesus. And तो वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं. so they are making fun of us. कोई बात नहीं. No, doesn't matter. आप धार्मिकता की तरफ भागते जाओ. You run towards righteousness. हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है. We don't have to fight हमें anyone. किसी को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है. We don't have to condemn anyone or speak against. Amen. लाइट जब अंधकार और अंधकार हो जाता है तो लाइट और ज्यादा तेज चमकती है. When darkness becomes वो darker, अंधकार the से लड़ाई light नहीं becomes करती. brighter. आप चमकते जाओ. You keep on आप shining. बढ़ते जाओ. You keep परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देता जाएगा, God देता will keep जाएगा. giving you growth and increase. Amen. Hallelujah. जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो आपकी निंदा करेंगे लोग. When you will walk after यीशु him, मसीह ने people कहा will जब मेरी criticize करी तो you. तुम्हारी भी करेंगे. Jesus said, if they hate it, they will hate you. दुख की बात ये दुनिया के तो करते हैं, कई अपने भी करते हैं, बट चलो कोई नहीं. The sad thing is many people in the world do, but many other people also do it. But I just got this thought in my heart. मुझे पता है वो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला. That their criticism will be a fuel for your exaltation. लोगों की निंदा आपकी जिंदगी में उन्नति के लिए और बढ़ोतरी के लिए ईंधन होगी. The more they criticize you in their closed rooms, जितना वो आपकी निंदा करेंगे बंद कमरे में. अरे तुमने सुना है उसके बारे में? Have you heard about him? जितना वो आपके लिए भला बुरा बोलेंगे बंद कमरों में, उतना ओपनली परमेश्वर आपको उठाएगा. The more they will criticize you behind closed doors, the more the Lord will exalt you. क्योंकि सुन रहा है ना बंद कमरों में क्या बोल रहे हैं आपके लिए. Because he hears what they speak तो against you आपको in closed वो doors. कहता है भैया तू मत लड़. He says, you don't fight. इसीलिए रिवेंज और वेंजेंस दो अलग अलग शब्द हैं बाइबल में. परमेश्वर वेंजेंस पता कैसे करता है? उनका बुराई करके नहीं, आपको और उठाएगा. You know how God देख takes मेरा vengeance? वेंजेंस मैं और उठाऊंगा. तू कर इसकी बुराई, मैं इसको और उठाऊंगा, मैं इसको और उठाऊंगा, मैं इसको और उठाऊंगा. How God does vengeance is He will lift you up all the more. The more they will talk bad about you, the Lord will lift you up all the more. अगर कोई आपकी बुराई नहीं करता तो ये चिंताजनक बात है. If nobody criticizes you, it's a problem. अगर सब आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो ये चिंता, इसका मतलब आप उन्हीं के कैंप में हो.
If everybody likes you and speaks good things about you, is a bad क्योंकि thing. अगर धार्मिकता की तरह जियोगे, धर्मी की तरह, तो लोग तो सताएंगे. Because if you will live like righteous, people will create problems for you. एक कहावत है, अगर आप नहीं चाहते कोई आपके लिए बुरा बोले तो आइसक्रीम बेचो. There's a saying, if पर you आप तो don't लोग want, उसमें बुरा बोलते हैं. if you want everybody to like you, then sell ice creams. Amen. Okay, coming back to the word. कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आज? मैं चाहता हूं केवल आप एक वचन लेके न जाओ यहां से. I want you to not only take a word from विश्वास का here, आत्मा लेके जाओ. but take the spirit of faith. विश्वास का आत्मा एक चीज करेगा, The spirit of faith will आपको do ये one thing. बेचारेपन के रास्ते में जाने नहीं देगा. वो खड़ा हो जाएगा, Take तू you- यहाँ नहीं take जा. you तेरी out एंट्री बंद है इस जगह. Take you out from the path of pity. He'll say, you're not allowed to enter here. बोले थोड़ा सा अंदर जाने दो, मुझे थोड़ा सा तरस चाहिए. I want a little sympathy. तुझे कोई तरस नहीं मिली है. No, you will not get any तू sympathy. एक विश्वास का योद्धा है. You are a अपनी champion. तलवार उठा, अपना मुंह खोल और विश्वास की घोषणा करना शुरू You're a कर. warrior of faith. Open your mouth, take up your sword, and start to make declarations. Amen. बोलो, I will never desire pity anymore. बोलो, मैं तरस की चाहत नहीं रखूंगा फिर कभी. Amen. मैं ये घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपको उस जगह में रखेगा जहां कोई भी आपके ऊपर दया नहीं दिखा पाएगा. I pray that God will place you in a position where nobody will ever be able to have pity on you. You will not be pitiable, you will be enviable. आप दयनीय नहीं, आप जलन के योग्य ठहरेंगे. Amen. Hallelujah. आप जानते हैं एक डेफिनेशन ब्लेस्ड की है, टू बी एनवीड. The definition of envy. blessed is to ईर्ष्याजनक होना या जलन के योग्य होना. एक परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की है, वो प्रभु के पास चले गए. Man of God, Reinhard Bonnke is going to be with the Lord. उनके लिए आप एक जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो अगर प्रभु का कोई सच्चा दास कौन है, तो देख लो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बुराई होती है, वही उसका सबसे सच्चा दास. If you want to find out who is a true man of God, then the people that are criticized the most are those true men of God. Amen. So रेनार्ड बॉन्की जो उनके लिए लोग बहुत बुरा बोलते थे, People used to say many evil things about तो him. कोई उनके पास आया, उनको बोला कि आप क्यों नहीं वो आंसर देते अपने क्रिटिक्स को. Someone came to him and said, why don't you give an answer to your critics? आपके बारे में इतना कुछ बोलते हैं, They say so many things about you. आपका क्या आंसर है अपने क्रिटिक्स के? What is your answer to your critics? उन्होंने कहा मेरा अगला क्रूसेड मेरा आंसर है. He said, my next crusade is my answer. मेरी अगली मीटिंग जो परमेश्वर मेरे जीवन, माई सक्सेस इज माई आंसर. मेरी सफलता मेरा उत्तर है. ओके. सो एक चीज जो मैं चाहता हूं आप आज समझे, ये विश्वास केनेथ हेगिन प्रभु के एक महान दास जो प्रभु के पास चले गए, वो 40 साल तक विश्वास सिखाते रहे. कितने साल तक? 40 साल. Kenneth Hagin, a great man of God, kept on teaching faith for 40 years. और तब कलीसिया को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा. And then the church began to understand a little bit. ब्रदर उगो कहाँ है? आर यू हियर ब्रदर उगो? Yes, yes. Hugo? Yeah, can you say? शैतान ने उनको मेंटली बांधा हुआ था. उन्होंने एक शिक्षा को 211 बार एक शिक्षा को सुना और कंप्लीटली फ्री हो गए. The devil had bound him in his mind. He heard one teaching 211 times and he's completely free. Amen. Now what? Now God has made him an example. अब परमेश्वर ने उनको एक उदाहरण बनाया. परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है God is विश्वास. going to make you an example of faith. मैंने कहा परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है I said God is gonna विश्वास make का. you an जब example लोग of आपको faith. देखेंगे कहेंगे मैं आपकी तरह विश्वास चाहता हूँ, When people will see you, they will say, I want faith मैं like आपकी you. तरह छुटकारा चाहता हूँ. I want deliverance like you. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. Just 3 more hours. बस 3 घंटे और. I don't have any dollars to give you, but I'll give you much more precious than that. Okay, so let's see this passage. Matthew 15, Mati 15, Matthew 15, we'll read from 21 to 28. Amen? Hallelujah. Okay. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया.
उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. English Bible says her daughter was severely demon possessed. अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि बहुत भीषण रूप से वो दुष्ट आत्मा की ग्रसित थी, सताई थी. और वो यीशु मसीह के पास आती है. And she comes to Jesus. But he answered her not a word. लेकिन उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया. What do you do when you feel like there is no answer coming? आप क्या करते हैं जब आपको लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे? You have believed God. आपने प्रभु पे विश्वास किया है. You did everything that you knew to do. आपने सब कुछ कर लिया जो आपको पता था. But there is no answer. पर कोई उत्तर नहीं मिला. It feels like God is silent. ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर चुप है. What do you do? क्या करेंगे? वो समय है जब बहुत सारे लोग बहुत जल्दी they give up on God and start to complain and grumble and murmur. That is the time जब लोग हार मान जाते हैं, परमेश्वर पे छोड़ देते हैं और शिकायतें लाने लगते हैं. He answered her not a word. उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया. And his disciples came and urged him saying, send her away for she cries out after us. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसको विदा करो क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. Can you imagine? Now I want you to pay close attention. मैं चाहता हूँ ध्यान दें of what is happening. जो हो रहा है यहाँ पे. Because कई लोग यीशु मसीह को एक जादूगर के, एक अलादीन के जीनी की तरह सोचते हैं. Because many people think that he's a magician or like a genie of Aladdin. कई लोग प्रार्थना को ऐसे होते हैं, हम तो गए वहां पे, हमने तो बोला, हमारे साथ तो हुआ नहीं. परमेश्वर एक अलादीन का चिराग जीनी नहीं है. They pray like that. They say, oh, we went there but nothing happened. God is not a genie. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? वो विश ग्रांट नहीं कर रहा. He's कि not तीन granting a विश wish. हैं, बोल बेटा क्या चाहिए. He's not granting a एक wish. सिद्धांत है, आपको सीखना है. There are principles you can learn. सो इमेजिन करिए यीशु मसीह के पास एक औरत आके, सोचिए कि वो गिड़गिड़ा रही है, उसे चिल्ला रही है. So a woman comes to Jesus and is bitterly asking him, He's not answering. shouting, and he's not answering. वो चुप है. Isn't that insulting? क्या ये बेइज्जतीजनक नहीं है? फिर वो गई डिसाइपल्स के पास. Then she went to the disciples. चेलों के पास जाके बोल रही है, She goes to the वहां disciples गिड़गिड़ा रही है. and she's फिर begging चेले them. आके यीशु मसीह को बोल रहे हैं, Now the disciples इसको come to भेज him. दे. Please send her away. इसको भेज दे, Please send क्योंकि her हमें away. परेशान कर रही है. She's bothering us. What do you do in such situation? क्या करेंगे आप ऐसी परिस्थिति में? When the answer that you expected to come didn't come the way you expected it to come. जब जैसा आप चाहते थे वैसा उत्तर नहीं मिला, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नहीं मिला. But he answered, and वो चेलों को बोल रहा है, he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया. Now imagine करिए, ध्यान से देखिए. कल्पना करें. अब यीशु मसीह उसको आंसर नहीं कर रहे, Now Jesus is not answering her. चेलों को बोल रहे हैं, He's talking to the disciples. मैं इज़राइल के गोत्र को छोड़ो और किसी के पास नहीं भेजा गया. I have not been sent to anyone other than the people of Israel. Now imagine if we were instead of that woman. अगर हम उस औरत की जगह होते, ठीक है मैं जा रही हूँ, said, fine, I'm going away. क्या मिला मुझे यहाँ आके? What did I get coming here? ये तो पार्शल है, Oh, तो केवल यहूदियों के लिए करता है. he only does for Jews. I love her response. I mean like man, I say मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारा हृदय भी इस औरत की तरह. उसके जवाब से मुझे बड़ा प्यार है. मैं कहता हूँ, Lord, let our hearts be like this woman. जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मैं इज़राइल की भेड़ों को छोड़ कहीं और नहीं भेजेगा, you know उसके बाद उसने क्या किया? When Jesus said, I am only sent to the lost sheep of Israel, you know what she said? She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की. She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की. Faith is unoffendable. विश्वास नाराजगी से आजाद है. विश्वास परमेश्वर के ऊपर नाराज नहीं होता. Faith does not get offended with God. Are you guys with me? She is now worshiping Jesus. वो यीशु की आराधना कर रही है. The same Jesus who has ignored her. वही यीशु जिसने उसको नजरअंदाज किया, She's worshiping him. उसकी आराधना कर रही है. You know why? पता है क्यों? I told you faith is persistent. मैंने आपको बताया था, विश्वास निरंतरता से बना रहता है. विश्वास ना नहीं सुनता. Faith does not hear no. Faith does not give up विश्वास हार so नहीं easily. मानता. कई बार मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, इसलिए ध्यान से सुनिएगा. कई लोग आए कलीसिया में चंगाई पाने के लिए. Many people came to the church for healing. हॉल फुल था, The hall was packed.
ऑफेंड होकर घर चले गए। They got offended and left. अरे घर से देख लेंगे हम YouTube। Or we'll watch from home, YouTube. किसी ने आपके सर पे गन नहीं लगाई कि यहाँ पे आओ। Nobody put a pistol on anyone's head to come here. The way we receive from God is through humility. परमेश्वर से ग्रहण करने का तरीका नम्रता है। Amen. She was unoffendable. वो नाराज नहीं हुई। वो आराधना कर रही है प्रभु यीशु मसीह की। She's worshiping the Lord Jesus. और just hear this and learn this principle. Yes, She सुने और worshipped him first and then put request. ये सीखें इस सिद्धांत को। उसने पहले उसकी आराधना की और फिर अपना निवेदन उसके सामने रखा। Learn to be a true worshipper. एक सच्चे आराधक Not बनो। just be a consumer. एक कंज्यूमर पता Consumer है करता है, प्रभु मैं ये लिस्ट ला गया हूँ। जैसे आपने देखा है कई बार आप जितनी भी वाइफ्स हो आप हस्बैंड को लिस्ट देती हो एक। अब तो खैर ब्लिंकिट आ गया, मगर पहले जब हस्बैंड बाहर जाता था तो एक लिस्ट आती थी, धनिया ले आना, दही ले आना, ये वो लिस्ट होती थी। Yeah, the wives would give a shopping list to their husbands. कई लोग परमेश्वर के पास इस लिस्ट लेके आते Many हैं, people- परमेश्वर ये दे देना वो दे देना। You worship him first. Many people go to God with a पहले shopping उसकी आराधना करो, वो परमेश्वर है। list. He is God. Worship Him first. Worship him first. Amen. So faith latches on to the ability and integrity of God. विश्वास परमेश्वर की क्षमता और उसकी खराई पर, उसकी ईमानदारी पर पकड़ लेता है। सीख रहे हैं आप? I can Are you close if you guys are. अगर हो गया तो बंद कर सकते हैं। If you are, और should I flow? इधर ज्यादा मुझे लग रहा है फ्लो हो रहे हैं लोग, I feel इधर more थोड़ा people कम are फ्लो हो flowing. रहे हैं। So, okay, coming back. She came and worshipped, saying, Lord, are you seeing there is no change in her language? वह फिर आई और यीशु के पास आराधना करने लगी और कहने लगी, प्रभु। कई लोग अपना मिरेकल नहीं पाते क्योंकि शैतान उनको बहुत जल्दी ऑफेंड कर देता है अपने मिरेकल पाने से पहले। Many people don't get their miracle because the devil offends them way before they got their miracle. मैंने आपको पहले भी कहा था, हम लोग अपनी क्षमता में आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट जितना कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, मेरे जैसे जैसे प्रभु इस कलीसिया को ब्लेस करता रहेगा, मैं बेस्ट करूंगा सबके लिए। बट फिर भी इस बात को जानो, ये एक होटल नहीं है। We told you we will do the best for the people of God. As God blesses us, we will keep doing the best for you. But this is not a hotel. ये परमेश्वर का घर है। This is the house of God. और एक ही तरीका है परमेश्वर से रिसीव करने का, वो है नम्रता। And there's just one way to receive from God. That's through humility. हेरोद राजा ने यीशु मसीह को बोला, दिखा मुझे चमत्कार तो मैं मानूं तू कौन है, दिखा। हेरोद यीशु की- मसीह ने उसको कुछ नहीं किया उसके साथ। Herod king said, show me a sign to believe that you're the Messiah. जो परखने के लिए आते हैं, मैं भी देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं, उनके साथ कुछ नहीं होता। They who come to say, I want to test, I want to see what happens. Nothing happens to them. जो नम्र होते हैं, Those who come humbly. she worshipped him. उसने उसकी आराधना की. उसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं ने बहुत सता रखा है। Her daughter is tormented by वो demons. जानती है मैं जब आज आई हूं ना तो आज उत्तर लेकर जाऊंगी, आज अपनी बेटी की चंगाई लेकर जाऊंगी इस जगह से। She knows when I have come today, I will take my answer. I will take my daughter's healing today. अब देखिए आगे 26। But he answered and said, उसने उत्तर दिया और कहा, वो वर्शिप कर रही है प्रभु को। she's worshiping the आप देखो Lord. यीशु मसीह ने कहा, But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. उसने उत्तर दिया, लड़कों की बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. Wow, now Jesus, it feels like he leveled up. अब लग रहा है कि यीशु ने स्तर बदल दिया है. और पढ़ के ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने शायद उस स्त्री की इंसल्ट करी। And then you read it, feels like that Jesus has insulted that woman. मगर क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि यीशु मसीह ने ये प्यार से कहा? But what will happen if I tell you that Jesus said out of love? This has been the scripture जिसकी वजह से कई लोग अटैक करते हैं प्रभु को, ये वो वचन है because of which many people attack the Lord क्योंकि इस वचन को नहीं समझते। because they don't understand. आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये he said it to her loving her.
यीशु ने उससे प्यार करते हुए उससे कहा. यहां पे उसको कुत्ता नहीं बोला. He did not call her a dog. तैयार हैं आप सीखने के लिए? Are you ready to learn? इसीलिए जब हम थोड़ा स्टडी करेंगे, जिस भी वर्ड्स में आपको लगता है जो डिफिकल्ट है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें उसका उत्तर असली पता चलता So when you study a verse which you think is difficult, you will get the answer to it. है. ये जो शब्द यीशु मसीह ने, आप देखेंगे बाइबल में भी उन्होंने कहा है लिटिल डॉग्स. Even in the Bible it says little dogs, छोटे ये कुत्ते. जो शब्द है, इफ यू कैन पुट इट अप ऑन द ग्रीक, दिस इज द वर्ड कुनारियन. कुनारियन. ये यूनानी शब्द कुनारियन है. कुनारियन, जिसका मतलब है अ पपी. क्या? छोटा कुत्ता जो घर में पालतू पेट होता है, जिसको लोग करते हैं बहुत प्यार. A pet in the house that people love. ध्यान से सुनिए यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या एनालॉजी, क्या उदाहरण दे रहा है. Then you'll understand what he's trying to say, what example he's giving. आप में से लोग होंगे, कितने लोगों के घर में कुत्ते हैं, जो आप कुत्तों से बहुत, अपने कुत्ते से जो लोग बहुत प्यार करते हैं वो अपना हाथ उठाएं, केवल वही. How many of you love their dogs? If you love your dog, come on, do it. अगर आपको अपने कुत्ते से बड़ा प्यार है, ध्यान से सुनिए. मगर चाहे आप अपने कुत्ते से कितना भी प्यार करें, but doesn't matter how much you love मगर your अगर pet आपका dog. बच्चा भूखा है If your child is hungry, तो पहले आप अपने बच्चे को खिलाओगे, उसके बाद अपने छोटे पपी को खाना दो. you will always give food to your child first and then to your pet. यहाँ पे यीशु मसीह प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं. Jesus is talking about priority वो here. कह रहा है पिता ने पहले मुझे भेजा है यहूदियों के लिए. He's saying the Father has first sent me for the Jews. अगर आप किसी को बोलोगे ना कि यू नो, यहाँ पे यीशु मसीह वैसा कुत्ता नहीं बोल रहा जैसे धर्मेंद्र बोलता रहा कुत्ते, ये वो वाला कुत्ता नहीं है. ये प्यार, ये वो पपी शब्द कह रहा है. ये पपी शब्द कह रहा हूं, पपी जिसको आप अडोर करते हो, कि कैसे लोग अपने पपी को लेके अडोर करते हैं. एक ऐसा पालतू that the people love. ये वो शब्द है, और ये 4 बार बाइबल में केवल यूज हुआ है, और केवल इसी कॉन्टेक्स्ट में And use this is used 4 times in the Bible. हुआ है. Can you and it's put all it for this again in the context. Greek? ये देखिए, टोटल KJV occurrences 4, 4 बार इस शब्द का इस्तेमाल करा गया है. This verse occurs in the Bible 4 times. सो वो जो स्त्री है वो समझ गई यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. That woman understood what Jesus तो आप क्या करते हैं, यीशु मसीह क्या कह रहा है, पहले मैं यहूदियों का पूरी मिनिस्ट्री तृप्त कर लूं, उसके बाद जेंटाइल्स में भी आ रहा हूं. Jesus is saying, first let me serve the Jews first and then I'll come to the Gentiles. तुझे भी मैं तेरे लिए भी करूंगा, I will do it for मगर you मेरी also. पहली कॉलिंग पिता ने जो मुझे भेजा है वो यहूदियों के लिए है. I will do it for you also, but my first calling is for the तो आप Jews. क्या करते हैं, पहले आप बच्चों को खाना देते हैं. You first feed your children. चाहे आप कितना भी प्यार करते हैं अपने कुत्ते को, No आप ये नहीं matter कह how सकते much you love कि your आपका dogs. बेटा कह रहा है मम्मी भूख लग रही है, बच्चा 3 दिन से भूखा है और आप केवल कुत्ते को पेडिग्री Your खिला. child is suffering for 3 days, but you're only feeding your dog. पहले आप अपने बच्चे को खिलाओगे. You first feed your child. और अगर आप ऐसा करते हो कि बच्चा भूखे और कुत्ते को खिलाते हो, तो प्रार्थना होगी सभा के बाद. And if you are somebody who feeds your dog and keeps your children hungry, we'll pray for you after the service. You need some right priorities. Okay. आपको सही So- प्रार्थना चाहिए. अब देखिए उस स्त्री को, अब आप पहले अपने बच्चे को फीड करते हो, जब आपका बच्चा भर जाता है फिर आप जाके उस छोटे पपी को खाना देते You first feed your child and then you go and feed your puppy. हो. मगर फेथ देखिए क्या करता है, बिकॉज फेथ इज वायलेंट. विश्वास क्या है, विश्वास वेट नहीं करता. अच्छा ठीक है, अब अगर कभी आएंगे हमारे पड़ोस में प्रार्थना करने तो हमारे घर भी भेज दीजिएगा उन्हें. Then if ऐसे they नहीं कर come to our neighborhood, send into our house. No. सकते. अब देखिए वो औरत क्या कह रही है. Now see what that woman is saying. वो औरत समझ गई यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. She understood Put the what scripture. Jesus is saying. She said, "Yes, Lord. उसने कहा सत्य है प्रभु. Even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." पर जो छोटे कुत्ते हैं वो मालिक की रोटी से गिरने वाले So ये चूरे कौन भी सा खाते कुत्ता हैं. है, ये सड़क का आवारा कुत्ते की बात नहीं हो This is not रही. ये talking about घर के अंदर जो stray dog. पपी है वो कह रही है हाँ प्रभु, मगर पपी वेट नहीं करता कि जब तक मालिक आएगा. वो जाता है और टेबल के नीचे जो चूरे गिरते हैं ना उनको खाने लग जाता है. It says the puppy goes and starts to eat whatever falls from the table. She didn't feel insulted. उसने बेइज्जती महसूस नहीं की, He was saying it in love. It's an analogy. क्योंकि वो प्रेम से एक उदाहरण दे रहा था. मगर जो बाइबल में कुत्ते कहा गया है, But the, धर्मेंद्र वाला कुत्ते, वो मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ. but the word dogs that is used in the Bible, That's kuon. Okay, can you put that scripture?
यहां पे है मैथ्यू 7, डू नॉट गिव व्हाट इज होली टू द डॉग्स। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। यीशु मसीह ने कहा पवित्र वस्तु किसको ना दो? सो इससे पहले धर्मेंद्र ने कुत्ते बोला, सबसे पहले बाइबल में हो। यीशु मसीह ने कहा, जीसस और आप जानते हैं केवल यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा और पौल ने कहा। Jesus said, then Peter said, Paul said, and John said. ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं और जो उसके काम को रोकते हैं और उसका विरोध करते हैं। This is for those that come against the work of God and want to stop His work. Do not give what is holy to the dogs. जो पवित्र है वो कुत्तों को ना दो। Okay. Can you put that in Greek? जो यहाँ पे कुत्ते हैं। So आपको पता चले कि दो अलग अलग शब्द हैं। देखिए ये जो शब्द है कुओन, ये अलग शब्द है। This is a different word. कितने लोग समझ रहे हैं? ये वो शब्द नहीं है। पहला वाला शब्द था कुनारियन, The first word was kunarion, और ये शब्द है कुओन। and this word is kuon. ये 5 बार बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। This comes in the Bible 5 times. इसका मतलब है कुत्ते। This means dogs. कौन से कुत्ते? कुत्ते, ये वो वाला कुत्ता है। This is the. Can you put that scripture? जहाँ सारे scriptures में आता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ बाइबल क्या कहती है उन लोगों के लिए। I want to show all the verses where it comes and what the Bible says. Matthew 7:6, do not give what is holy to the dogs, right? So Philippians 3:2, beware of dogs. 2 Peter 22, the dog is turned to his own vomit. Revelation 22:15, for without are dogs and sorcerers. All this is kuon. ये सारे जो वर्सेस हैं यहाँ पर कुआन इस्तेमाल किया गया है। मगर यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को बोला तो कुआन नहीं बोला। But when Jesus spoke to that woman, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह ने वो घर की भाषा बता रहा है, प्रायोरिटी बता रहा है कि जब एक घर में जो एक पिता होता है, पहले वो अपने बच्चों को रोटी देता है, उसके बाद जो छोटा प्यारा पपी है उसको देता है। He's talking about a family where the father first feeds his children and then he feeds his loved dogs or his pets. क्योंकि उस समय ये हम नए नियम शुरू नहीं हुआ था जो अन्य जातियों के लिए। Because the New Testament had not started there. The New Covenant had not started there. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, I am not sent to anyone except the lost sheep of Israel. Jesus said, मैं केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। Amen. And देखिए, let's see what that woman says. Let's go back to that scripture. Hallelujah. She said, yes Lord, even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. उसने कहा सत्य है प्रभु, पर जो वो छोटे कुत्ते होते हैं पालतू, वो भी छोटे अब टुकड़े ध्यान खाते सुनो, हैं। कई बार क्या होता है, What happens many times? आप अपने बच्चों को रोटी देते हो, You give your child वो food, रोटी फेंक देते हैं। they throw away the food. हैं, हम सबके बच्चे हैं, हमें पता है। We all have वो kids, कई you बार know. नहीं जानते महत्व उस रोटी का। Many times they don't know पर the जो ये importance छोटे of the पपी है food. ना, But these little वो puppies, कह रही है मेरे लिए क्रम काफी है। they're saying a crumb is enough for me. कह रही एक छोटा टुकड़ा यीशु मसीह जो तू कर रहा है ना, तेरी मिनिस्ट्री जो तू तेरे द्वारा जो परमेश्वर कर रहा है, उसका एक छोटा सा क्रम भी मेरे लिए काफी है, मेरी बेटी के लिए। She's saying, Jesus, the work that God is doing through you, even a small portion of that is enough for me. My daughter. ये वही यहूदियों ने उसका तिरस्कार किया, जो वो करने आया उन्होंने उसका मना कर दिया। मगर देखो यहाँ उस स्त्री को जो यहूदी नहीं है, फिर भी वो कह रही है कि तू मालिक है और तेरी टेबल से गिरा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा भी प्रभु मेरे लिए काफी है। The Jews rejected the ministry of Jesus, but she's saying, who is not a Jew is saying, you are the Lord, and even a small crumb from your table is enough for me and my family. मैं आपको बता रहा हूँ, दिल का एटीट्यूड, The attitude of our heart. कई लोग ऐसे जो बाहर हैं बैठे, पर आप जानते हो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं दूसरी ब्रांचेस में भी तो लोग बैठ के स्क्रीन से देख रहे हैं ना, और उनको भी उनका चमत्कार मिल रहा है, हम बाहर बैठे हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए काफी है। You know, there are many people sitting outside and they say, there are many people in our बात branches अंदर sitting बैठना outside. बाहर बैठना कहाँ पे हो, आप ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बात है आपके हृदय का एटीट्यूड कैसा है, ये डिसाइड करता है आपको चमत्कार मिलता है कि नहीं। The matter is not sitting inside or outside. The matter is the attitude of your heart what determines whether you get your miracle or not. Amen? वो कह रही प्रभु, वो छोटा पपी है, वो वेट नहीं करता, ओके जब बच्चे खा लेंगे फिर मैं। फेथ क्या करता है, वो टेबल के पास चल जाता है,
वो वेट करता है एक छोटा टुकड़ा गिर जाए. She's saying a small puppy doesn't wait that after the kids have eaten. The puppy goes next to the table. Even if a crumb falls in it, it's enough. और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा उसके And see what Jesus told her. Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith." यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है. तेरा विश्वास महान है स्त्री, Your faith is great, O woman, क्योंकि तू उस मूल्य को समझती है. because you understand the value. इसीलिए जो तृप्त है ना, Those आप who are- उनको बेस्ट खाना दो, वो उसका भी तिरस्कार करेंगे. Those who are already full, if you give them the best food, they will also reject it. मगर जो भूखे हैं But those who are hungry, वो कह रहे एक छोटा टुकड़ा काफी है. they will say a small portion is enough. और यीशु ने कहा, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. यीशु ने उससे कहा, तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई. और दूसरी जगह लिखी है कि यीशु मसीह गया और अपने नगर में बड़े बड़े काम ना कर सका क्योंकि उन्होंने उसको तुच्छ जाना. And in another place it says Jesus went to his own town and he could not do many mighty miracles because the people thought little of him. आई होप दिस इज क्लियर. आज के बाद आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्यों उसको छोटा पपी कहा था. वो घर की एक उदाहरण दे रहा है घर का, कि पहले आप अपने बच्चों को फीड करते हो, फिर आप जो छोटा आपका पपी है जिससे आप बहुत प्यार करते हो बच्चों के बाद, उसको देते हो. So Jesus was giving the example how you first feed your children and then you feed your loved puppies or loved dogs. अब इमेजिन क्या होगा अगर टेबल में बैठे हैं और बच्चा कह रहा है मुझे नहीं खानी रोटी, मुझे नहीं खानी. Now what happens if the child says I don't want to eat? आपने तो क्या करोगे? आप वो रोटी लेके You will उस take puppy को दे दो. that food and give She it to was the dog. able to draw in a covenant that was not for her. That's what faith can do. वो एक ऐसी वाचा में अपने लिए चमत्कार ले बैठी जो उसके लिए थी ही नहीं. ये विश्वास आपके लिए कर सकता है. Amen. Don't get offended. आप जानते हैं कितने लोग आज परमेश्वर पे offended हैं? नाराज मत हो जाना, क्योंकि बहुत से लोग they are offended with God. वो जब देखते हैं किसी का उत्तर आया मेरा नहीं आया, कहते क्या करा परमेश्वर ने, मेरे साथ नहीं करता. When they see somebody else got blessed but they did not, and they say what has God done for me? Don't give up on your father, अपने पिता पर हार मत मानो, because he will never give up on you. क्योंकि वो कभी आप पर हार नहीं मानता. Come on, tell your neighbor, say don't give up on your father. अपने पड़ोसी से कहें अपने पिता पर हार मत मानना. Amen. Okay, last scripture and then we'll pray. Proverbs 18:20 to 21. नीति वचन 18, Proverbs 18:20 to 21. 20 और 21. Amen. कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? Amen. See, this is God's word ये परमेश्वर का वचन है and this is alive. और ये जीवित है. A man's stomach shall be satisfied from the fruits of his mouth. एक मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है. अब जब लोग कहते हैं बातों से पेट नहीं भरता, कहना बाइबल में नहीं लिखा ऐसा. बाइबल लिखा है मुंह की बातों से ही पेट भरता है. The Bible is saying the stomach is filled by the words of your mouth, fruits of your mouth. मतलब इसका मतलब क्या कहने का? इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना ना खाएं. Doesn't mean- बाइबल क्या कह रही है? जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे वो आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे और आपकी समृद्धि आपको बेस्ट खाने के लिए देगी. The Bible is saying the words that come out of your mouth will give you the best, will give you the prosperity to eat from. मैं I was watching एक लेडी की टेस्टिमनी, और वो एक ऐसे आइलैंड में रहती थी अफ्रीका के जहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके ऊपर से ना एक बार एरोप्लेन जाते थे. A woman used to live in Africa in a place where there was no electricity, nothing, and there used to be planes that would fly over the island. जब वो छोटी थी ना, वो तब कहती थी जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं एक खरीदूंगी. When she was a young girl, she used to always say, when I grow up, I will buy one of तो these. उसका मजाक उड़ाते थे सारे गांव वाले. And all the people mocked her. Today आज she has fleet of planes. उनके पास कई सारे planes हैं. A man shall be filled with the words of his mouth. एक मनुष्य अपने मुंह के फलों से अपना पेट भरता है. Amen. From the produce of his lips. Now hear this carefully. Your lips have the capacity to produce. अपने होठों की उपज से, समझे कि आपके होठों में उपजने की क्षमता है. From the produce of his lips, उसके होठों की उपज से he shall be filled. वो तृप्त मैंने आपको होगा. क्या बोला था? आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, I said today the life you're living.
ये वचन आपने सालों बोए हैं, जो आज आप कटनी कर रहे हो वो पुरानी फसल की कटनी कर रहे हो। मगर अगर आपको नहीं पसंद यह फसल, तो एक अच्छा उपाय है, नए बीज डालने लग जाओ आज। Whatever you are eating in life today is because of the seed you have sown in the past. If you don't like this fruit, then start to sow good seed. एक डिसीजन लो, मैं वही घोषणा करूंगा, मैं वही बोलूंगी जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं या चाहती हूं। Take this decision today. I will only say, I will only speak that which I want to see in my life. कई माँ बाप हमें अपने बच्चों को बोलते, अरे हमारा बेटा कितना नालायक, अरे नालायक, अबे गधे, ओ गधे। Many people speak evilly to their own children. They call them. फिर कहते हैं हमारा बेटा इतना गधा क्यों है? And they say, why is our child such a fool? प्रभु कहेगा 2 बड़े गधों की वजह से। The Lord will say, because of 2 big fools. देखो यहाँ आए हो तो सच सुनोगे। If you've come here, you will hear the truth. अरे क्यों नहीं अपने बच्चे को बोलते कि मेरा बेटा बेस्ट है अपने स्कूल में? Why don't you say my क्यों नहीं child is बोलते the best? मेरा in this बेटा school? एक्सीलेंट है, मेरी My बेटी child is एक्सीलेंट है? My daughter is excellent. You shall be filled with the produce of your lips. तुम अपने होठों की उपज से भर जाओगे। पास्टर जी बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती, मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, इतना कॉमन है, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता। इतनी बार घोषणा कर दिया कि अब स्वर्गदूत भी खोलेंगे उस बाइबल को तो मुश्किल होगी खोलना। Oh, I cannot read the Bible. I cannot read the. You've declared so much. Even if the angel tries to help you, अरे बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूँ। I love the word of God. मैं जितना मर्जी चाहे उतना वचन पढ़ सकता हूँ। You should be saying, I love the word of God. I can read the word as much as I want. Okay. Now, write this down. This is very powerful. इसको लिख ले, बहुत शक्तिशाली है। Okay. This can go on Twitter. Okay. Don't say what you feel. Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो Let me say वो that आप again. बोलें। Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो जाए वो आप बोलें। Imagine करिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, Imagine you went to a आपने 3 दिन restaurant. से खाना नहीं खाया, You are hungry from 3 days. वेटर आपके पास आता है, The waiter comes to बोलता है you. सर क्या लाऊं आपके लिए? Sir, what do you want? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, I haven't eaten anything from 3 मुझे days. बहुत भूख लगी है। I am very hungry. वेटर बोले अच्छा, The waiter will say, okay, okay. बड़ा दुख हुआ मुझे सुन, I am very sad to hear that. पर आप बताओ क्या लाऊं? Now tell me what you अरे want. तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो Oh, यार, you don't understand me. तुम्हें पता है तुम समझ ही नहीं सकते कभी। You know you can never understand what I'm 3 going दिन से through. मैंने नहीं खाया है। 3 days I haven't eaten. अच्छा जी, समझ Okay, गए। I understand. अब बताओ क्या लाऊं? Now what do you want? तुम अरे, समझ ही नहीं रहे हो। You don't understand? तुम्हें पता है मेरे से क्या बीत रही है मेरे You know ऊपर? what have I gone through in 3 मैंने days? 3 दिन से नहीं खाया है। I haven't eaten in 3 days. ऐसे कई लोग कलीसिया में आके This is how many people do in church. पास्टर प्रे कर दो। Pastor pray. ओके, एग्री करते हैं हीलिंग है। यीशु मसीह, In Jesus' name. आपको पता है, आप पता ही नहीं है आपको अभी। Do you know? You don't even know what I'm going through. पहले सुनो मुझ पे क्या बीत रही First, है, hear what I'm going through. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। It will not change anything. आंसर के पीछे जाओ, आंसर के Go पीछे। after the answer. मैं ये घोषणा करता हूँ, आपका ये जो गाना है ना रोने का, ये जय के गाने में बदल जाए। I declare that your song of God weeping, change their songs to the song of victory in the name of Jesus. प्रभु इनके ये रोने के गीत को बदल कर जय के गीत में बदल लो यीशु के नाम में। Amen. वो मत बोलो जो महसूस करते हो हर समय, वो बोलो जो अपने जीवन में देखना चाहते हो यीशु मसीह के नाम में। Don't speak what you feel all the time. Speak what you want to see in your life in Jesus' name.